Hello, Suman. So today Hello. we have Suman with us. Suman is a housewife, a working professional turned housewife turned influencer. She is currently creating content around that helps parents and mothers specifically. So Suman, let's first start with like आपने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट की, कैसे आपने सोचा कि आपको कंटेंट क्रिएट करना चाहिए और कैसे अब तक कैसे पेरेंटिंग ने आपको ट्रीट किया. टेल मी फर्स्टली एवरीथिंग. आपका थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। कैसे स्टार्ट किया मैंने अपनी जर्नी को, तो जब अपने बच्चे को संभाल रही थी, बहुत सारी मुश्किलें आई, बहुत सारी चीजें थी जो मुझे नहीं समझ आ रही थी। सो आई स्टार्टेड रिसर्चिंग अपॉन दोज थिंग्स कि कैसे करना है। कुछ चीजें काम कर जाती थी, कुछ चीजें नहीं करती थी। देन मुझे ये लगा कि बहुत सारी ऐसी मदर्स होंगी मेरी तरह जिनको इसी तरह की हेल्प की जरूरत पड़ेगी। देन आई स्टार्टेड द क्यूरियस मदर। उसके थ्रू मैं अपनी जर्नी शेयर करती हूँ, एक्सपीरियंसेस शेयर करती हूँ। बस इसी तरह स्टार्ट किया। Okay. So, like, how has been parenthood with you lately? It's been a mix of adventures and learning experiences, I would say, but we are enjoying the journey now. Okay. You have been an influencer along with being a mother, right? Mhm. If someone is watching us doing something, then our behavior automatically changes. So that Yeah. would be impacting your parenthood as well. Like you are shooting all the time, or you are shooting some of your precious moments. So how has that been changed? Or if you are not doing content creation, would you think that your parenting style would be similar to this only? See, so far not yet because I'm not such a big influencer right now. Okay, but even if I'm one of them, I will pre-plan things, so that it doesn't impact my parenting. What I do now is I utilize the time when my child is at school. When he's at school, I utilize that time to shoot the video, edit it, and then post the content. Whenever he is studying, I write down my topics and content on my diary so that he gets the partner. He thinks sometimes ki, okay, mama is writing something important on her diary, I also do that thing, do some of my work. So this way I plan things. Okay. He knows everything about me, that mama shoots, mama has a channel, everything he knows. I really avoid the thing ki I'm editing in front of you, just because I don't want him to think ki mama is always on her phone. So yeah, this thing I avoid. Okay. So moving forward, like, have you ever encountered like any kind of trolling, online trolling, or any kind of hate comments till now? Like, okay, what are you doing? We don't need your advice, or something like that. And have you encountered any such thing? Or if you do, then how you cope up with that? How your family is affected with that? शुरू में तो ऐसा था कि आप दिन भर शूट ही करते रहते हो वीडियोस के सामने, एंड यू आर ऑल्सो एडवाइजिंग कि हाँ. आप बच्चे यूज मत करो एंड ऑल दैट। सो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आई ऑलवेज अवॉइड इन फ्रंट ऑफ हिम, डूइंग इन फ्रंट ऑफ हिम, बिकॉज दैट ऑल्सो मेक्स मी फील लिटिल वरिड कि मैं बच्चा यही करेगा कि अच्छा मम्मा एवरी डे शी इज यूजिंग फोन, एवरी टाइम शी इज यूजिंग फोन, तो मैं भी फोन मैं यूज भी करता चला हूँ, सकता एंड हूँ. कुछ इम्पैक्ट पड़ जाता है। तो वो मैं अवॉइड करती हूँ फर्स्ट थिंग। जब शुरू शुरू में ऐसे कमेंट्स आने लगे तो आई डिस्कस्ड इट विद माय हस्बैंड, तो ही टोल्ड मी कि व्हाई आर यू वरिंग, यू आर नॉट डूइंग सच थिंग्स, राइट? आप अपनी पेरेंटिंग इतने अच्छे से करें, देन वाई ये आप दूसरों की बातें सुन के क्यों इतना इफेक्ट हो रहे हैं? तो वो चीज करके जब हमने डिस्कस किया, धीरे धीरे मैं समझने लगी कि जो लोग हैं दे विल ऑलवेज से समथिंग अबाउट हम्म. यू। चाहे अच्छा करें चाहे गंदा करें, कुछ भी करे, दे विल हैव टू से समथिंग अबाउट यू। सो स्टॉप वरिंग अबाउट देम एंड डू योर वर्क। ओके. सो लाइक एक दिन में तो नहीं हुआ होगा कि आपने सोचा है कि मैं अपने बच्चे के साथ सब कुछ शेयर करने लग जाऊंगी. तो हमने कैसे सोचा कि मुझे अपने लाइक ऐसे टैबू टॉपिक्स को शेयर करना चाहिए? लाइक पीरियड्स इज वन ऑफ देम. यू शेयर एवरीथिंग विद योर किड, राइट? सो आप उसको कैसे उस चीजों के साथ इंट्रोड्यूस कराते हैं? एंड देन आपके पेरेंट लाइक पार्टनर का उसमें क्या रोल रहता है? एंड देन अगर आप ऐसी वीडियोस पुट अप कर रहे हैं तो योर पेरेंट्स वुड बी लाइक गिविंग यू एनी फीडबैक और सच थिंग. So, like, how do you manage everything? See, I feel addressing taboo topics at home is really important. Why? Because it helps us understand each other, and it really encourages open communication.
इट बिल्ड्स अ ट्रस्ट इन योर रिलेशनशिप। तो ये बहुत जरूरी होता है। व्हाई? बिकॉज मैंने खुद से फील किया है कि जब when I was I had my periods, तब मुझे ये फील हुआ कि मतलब कहीं से मुझे कुछ हेल्प चाहिए थी। मैं ऐसा एक ओपन कम्युनिकेशन चाहती थी कि मुझे सारे सवालों के जवाब मिले, जो हम्म। मुझे नहीं मिले। दैट गैप जो था, कम्युनिकेशन गैप, वो मुझे बहुत ज्यादा फील होता था। जब शादी के बाद देन आई डिसाइडेड कि मुझे अपने बच्चे के साथ ऐसा नहीं करना है। वो जो कम्युनिकेशन गैप है, दैट आई वांट टू फिल somehow। सो दिस वे, मतलब मैं चाहती थी कि मेरा बच्चा कभी भी कुछ क्वेश्चंस होंगे उसके पास, तो वो बाहर ना जाए उसके लिए। क्योंकि बाहर जब भी हम जाते हैं, आउटसाइड वर्ल्ड इज नॉट सेफ एट हम्म। ऑल। नॉट ट्रस्ट, इट्स ऑलवेज बेटर कि आप जो भी बच्चे के क्वेश्चंस हैं, इफ योर चाइल्ड कम्स टू यू एंड आस्क यू एनी क्वेश्चन, फॉर यू इट माइट बी वियर्ड, बट फॉर हिम इट्स अ नॉर्मल क्वेश्चन, राइट? हम्म। सो अगर आप उसे बिल्कुल गुस्सा करके भगा देते हैं, बोलते कि नहीं, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन यू आर आस्किंग, दिस इज सो बैड एंड डोंट आस्क मी अगेन, गो अवे फ्रॉम हियर, he will become more curious about that question। okay, वो ज्यादा क्यूरियस हो जाएगा, वो इतना ज्यादा परेशान हो जाएगा कि मम्मा ने इसका जवाब नहीं दिया, इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ इसमें बात है, ऐसी हम्म। बड़ी बात है। एंड he will look his answers outside। Yeah. तो टू अवॉइड सच थिंग्स, इट्स ऑलवेज बेटर कि आप उसे अपने पास बिठाएं, उसके सवालों को सुने। अगर आपको लगता है कि दैट क्वेश्चन इज नॉट एज अप्रोप्रिएट, हम्म। अभी उसका टाइम सही है, तो आप उसे अच्छे से बता दीजिए कि बेटा, आई विल टेल यू टुमारो, आई विल टेल यू वीक्स लेटर, आई विल टेल यू मंथ्स लेटर, और आई विल टेल यू ईयर्स लेटर। अगर आप उसे बता देंगे तो हिल बी वेरी, बिल्कुल उसको हो जाएगा कि हाँ ठीक है, मम्मा मुझे बता देगी, मम्मा ने आंसर कर दिया है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। बट आप जब भी उसको रिएक्ट करेंगे उसके क्वेश्चंस पे, देन उसके दिमाग में कहीं ना कहीं वो बात आ जाएगी कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दिस क्वेश्चन, एंड इसमें कुछ बड़ी बात है जो ये मुझे बता नहीं रहे। So I think it is very important to have an open communication with your child. अभी जैसे आपने बोला कि हम बोल सकते हैं कि हम 1 महीने बाद बताएंगे या कुछ ईयर्स बाद बताएंगे, तो वो कैसे डिसाइड होता है, लाइक हाँ ओके दिस इज द अप्रोप्रिएट एज, अब हमें ये चीज, ये वाली सीक्रेट इसके साथ शेयर कर देना चाहिए, या जो भी टैबू है कि हाँ वो इस एज में है जब वो उस चीज को सही तरीके से समझ पाएगा, बिकॉज समटाइम्स ओवर शेयरिंग ऑल्सो हर्ट्स द चाइल्ड, क्योंकि उनको Yeah, yeah. प्रोसेस करने का माइंड में स्ट्रक्चर नहीं होता है, वो इतना समझ नहीं पाते हैं। एंड देन व्हेन दे कम्युनिकेटेड विद द आउटसाइड वर्ल्ड, तो फिर ये इशू आ जाता है कि इस बच्चे को सही से पता नहीं है, या फिर ज्यादा पता इस एज में नहीं पता होना चाहिए, ये इसके साथ कैसे शेयर किया जा सकता है। तो हाउ डू यू मैनेज इट, कि आपको कैसे लगता है कि ओके ये एज अप्रोप्रिएट है, अब ये टाइम सही है, अब मुझे शेयर करना चाहिए? See, every child is different। हर चाइल्ड का एक अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है, मेच्योरिटी लेवल होता है। अब जैसे मैं एक मदर हूँ, मैं अपने बच्चे को सबसे ज्यादा जानती हूँ कि क्या उसका मेच्योरिटी लेवल है, क्या उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल है, कहाँ तक मैं उसे समझाऊंगी तो वो समझ जाएगा, उसके आगे वो अपना दिमाग नहीं चलाएगा हम्म। कि अच्छा और भी सब ठीक है। वो सब अपने जो पेरेंट होते हैं वो अपने बच्चे को अच्छे से समझ सकते हैं। सो एक पेरेंट ही डिसाइड कर सकता है कि कितना उसको बताना है, किस टाइम पे बताना है, और उसका क्या असर पड़ेगा उस पे। जैसे इफ आई टॉक अबाउट पीरियड्स वाला थिंग जो आप बता रहे थे कि मैंने शेयर किया अपने बच्चे के साथ, बिकॉज आई नो कि मेरा बच्चा कितना ज्यादा मेच्योर है, कितना समझ सकता है, क्या उसे मैं समझाऊंगी कि वो उसका जो क्यूरियोसिटी लेवल है वो थोड़ा सा वो हो जाएगा कि ओके। तो दिस वे आई डिसाइडेड, पहले मैंने अपने हस्बैंड के साथ शेयर किया कि ही इज आस्किंग समथिंग अबाउट दिस, हम्म। तो मैं बताना चाहिए क्या? फिर आई रिसर्च कि कैसे मैं उसको बताऊं, कितना बताऊं को तो सारी चीजें करने के बाद आई टोल्ड हिम दैट आई विल टेल यू टुमारो। उसको जब उसने मुझसे पूछा, आई डायरेक्टली टेल हिम कि बच्चा मैं आपको कल बताऊंगी, और कल जो भी है विल टॉक अबाउट इट। तो मैंने रिसर्च किया, मैंने अपने हस्बैंड के साथ डिस्कस किया वो सारी चीजें, एंड देन जब मुझे लगा कि ओके दिस इज द पार्ट आई हैव टू शेयर विद इट विद हिम, देन तो वो मैंने शेयर किया। So it all depends upon child's maturity level, his age. ओके। सो यू मेंशन अबाउट कि आपने अपने पार्टनर के साथ डिस्कस किया, शेयर करने से पहले आप लोग डिस्कस करते हैं कि हमें कैसे शेयर करना चाहिए। तो कभी ऐसा इंसिडेंट हुआ है, लाइक आप चाहती हैं कि शेयर करें या आपके पार्टनर चाहते हैं कि शेयर करें, बट उसको लग रहा है कि वो अभी एज अप्रोप्रिएट नहीं है, या फिर कुछ भी ऐसा, लाइक इसके अराउंड स्मॉल डिस्कशंस और कॉन्फ्लिक्ट्स तो होते ही होंगे। सो हाउ डू यू हैंडल दैट?
Yeah, sometimes it happens that we don't agree on each other. So whatever what we do is we talk it out and we try to find a solution that works, both for both of us. It is very important to discuss. ऐसा होता है, बहुत बार होता है कि वो किसी चीज पे एग्री कर रहे हैं, मैं नहीं कर रही हूँ, बट वी ऑलवेज डिस्कस दीज थिंग्स कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. वी लिसन टू ईच अदर, वी टॉक इट आउट एंड वी ट्राई टू फाइंड आउट अ सॉल्यूशन. Okay. So that is what relationship are meant to be. Okay. अगर बात हम झगड़ना शुरू कर दें तो सामने वाला बच्चा जो है वो तो इम्पैक्ट होगा ही होगा, हमारा रिलेशनशिप भी इम्पैक्ट होगा. सो इट्स ऑलवेज बेटर टू डिस्कस दोस थिंग्स, लिसन टू ईच अदर. दैट इज इम्पोर्टेंट. Many platforms have recognized your work and your way of parenthood, and how many now many parents look up to you for advice. So does that make you more conscious of your choices? You are like it would be like कि everyone is looking at you कि हाँ अब आप क्या कर रहे हो, अब आप कैसी choices ले रहे हो, and then वो उस हिसाब से अपने parenting में improve कर रहे हैं, तो pressure तो आता होगा तो. See, it does make me think a bit more about my decisions. लेकिन still I aim to share real experiences of mine, because I don't want कि मैं सिर्फ दिखाऊं और Hmm. लोग okay, this is the real thing, and they also try to adapt it. No, I don't do such things, because पेरेंटिंग एक ऐसी चीज है कि आप दूसरे का देख के उसको सेम टू सेम नहीं अप्लाई कर सकते. जैसा आपके बच्चे पे अप्लाई होगा, जैसा आपका बच्चा है, उस तरह से आपको उसको उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना पड़ेगा उस चीज को. सो यस, मुझे लगता है कभी कभी, बट फिर स्टिल उसके बाद में ये सोचती हूँ कि नहीं, ऐसा नहीं, मतलब थोड़ा सा वो चीज आ जाती है कभी, बट स्टिल आई ऑलवेज ट्राई माई बेस्ट टू शेयर माई थिंग्स, शेयर माई रियल एक्सपीरियंसेस विद अदर पीपल. जब भी कोई पेरेंट मुझसे क्वेरी पूछता है, कुछ क्वेश्चन पूछता है, तो आई एडवाइस हिम एंड आई टेल देम आल्सो कि सी, दिस इज वर्किंग फॉर माय चाइल्ड, दिस इज वर्किंग ब्यूटीफुली फॉर माय चाइल्ड, बट इट माइट नॉट वर्क फॉर यू Hmm. टू. सो दिस इज द थिंग. Like diverging a little from the topic, I'd like to ask like you started your influencer journey from the very scratch with no support, and you like आपने खुद फिगर आउट किया है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, लोगों को कैसी चीजें पसंद आ रही है. तो अगर कोई मदर है लाइक वो अभी अपना काम उसने छोड़ा हुआ है ड्यू टू हर चाइल्ड, तो अगर वो स्टार्ट करना चाहती है इन्फ्लुएंसर जर्नी, तो आप उसको क्या एडवाइस देना चाहेंगे, कैसे स्टार्ट करना चाहिए, कैसे अपने फियर को ओवरकम करें, कैसे लाइक अगर कोई शाई नेचर का है और कभी उसने बात नहीं की है, काम नहीं किया है, तो आप उसको कैसे क्या एडवाइस देंगे और कैसे स्टार्ट करें अपने कंटेंट क्रिएशन. सी, जैसे मैंने स्टार्ट किया था, बिकॉज मेरे पास भी जैसे आपने कहा, देयर वाज नो थिंग. हम्म. आई स्टार्टेड इट स्क्रैच. जो भी मुझे प्रॉब्लम्स आती थी, वो मैंने लोगों के साथ शेयर किया. जो भी प्रॉब्लम्स ऐसा, अभी क्या होता है, कभी कभी हमें लगता है कि ये तो बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है, ये क्या शेयर करूं, ये तो सबको पता ही हम्म. होगा, बट नहीं, नहीं होता है, वो सबको नहीं पता होता है. बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपको फील होता है, जो आप अपनी डेली जर्नी में, पेरेंटिंग जर्नी में एक्सपीरियंस कर रही हैं, वो आप शेयर करना स्टार्ट कीजिए. शुरू शुरू में हमारी वीडियोस अच्छी नहीं बनेंगी, हमें डर लगेगा Yeah. बोलने में. कैमरा फेस करना इज नॉट वेरी इजी. हम्म. वो धीरे धीरे ही आता है. आपको फर्स्ट वीडियो अच्छी नहीं बनेगी, सेकंड नहीं बनेगी, बट धीरे धीरे इट विल बी, ओके, इट विल बी गुड. So moving forward, like I would ask some questions to you and I would like कि आप उनको ऐसे one word में फटाफट से आंसर करो. तो like what is the one parenthood advice that made your life truly easy? You have आई to pick थिंक इट just one because there are ओके, many advices for parents out there. फ्लेक्सिबल एंड पेशेंट. Okay, so being patient with your child. Being patient with your child, yeah, that is very important. Since you share a lot with your child, like you share everything, so would there be any incident? Were there any incident where like you felt speechless by your child's question? Any funny incident? Funny, I don't remember, but speechless, I can share. So whenever I'm not feeling well,
तो मेरा बच्चा वहाँ पे आता है एंड ही मेक श्योर टू गिव मी अ वार्म हग एंड हाथ सर पे से हाथ फेरता है एंड वो बहुत ही सॉफ्ट वॉइस में पूछता है कि मम्मा आर यू ओके, सब ठीक है क्या, मैं पानी लाऊं आपके लिए। सो दैट रियली मेक्स मी फील स्पीचलेस, इमोशनल एंड हैप्पी एट द सेम टाइम। ओके, सो इफ यू कुड डिस्क्राइब योरसेल्फ एज अ मदर इन one or two adjectives or qualities, what would that be? क्यूरियस एंड पेशेंट। That's that's very wise of you. Curious and patient. Okay. So Suman, it was a great pleasure talking to you, and I really liked and enjoyed this talk. I hope कि सबको ये बात पसंद आए, और सब अगर किसी को कोई भी इशू हो तो वो आपको रीच आउट कर सके, कोई भी प्रॉब्लम अगर वो फेस कर रहे हैं तो यू वुड बी देयर टू हेल्प देम, बिकॉज आपने भी वो सब फेस किया है. So thank you very much for coming to this episode. थैंक्स टू यू टू अपूर्वा, थैंक यू सो मच। Thank